are here. We'll start the session. Before that, I should introduce myself. So I'm Shweta Ahuja, Microsoft Master Trainer. I have trained around 3,000 educators in this year on different tools of Microsoft. And I'm from CyberDiction Technologies. CyberDiction Technologies is a global training partner of Microsoft. Okay, so Microsoft doesn't give the trainings directly. Microsoft provide training to the educators through global training partners. So CyberDiction Technologies is an authorized learning partner as well as global training partner of Microsoft. And for today's session, I'll be your trainer. So I welcome you all on the behalf of CyberDiction Technologies as well as on the behalf of Microsoft in this webinar. This is your first training session. Yeah, लोगों का first training session है. If you want me to be converse in English, I can give this training in English. I can give this training in Hindi. That's two languages I know. So I can provide the training in either of the language. So you can tell me the preference, or you want it to be bilingual. You can tell me the preference so that I can proceed accordingly. Anyone? You want me to proceed in English? You want me to proceed in Hindi? Suman ma'am, if you're saying something, you are on a mute mode. I'm not able to hear you. She's not getting it, I think. Maybe Ma'am, we are maybe comfortable in both the languages. Okay. Okay, thank you so much. So, fine. Let's start. So what we'll do is in this today's session, before starting, I just have a small request. Okay, I want you all to keep yourself on mute mode. Okay, I request you all कि आप सब अपने आप को म्यूट मोड पे रखें. आप सबके पास माइक्रोफोन का बटन होगा इस टाइप का. मे बी ये बटन आपको इधर टॉप राइट कॉर्नर में शो हो रहा होगा या फिर इधर सेंटर वाली स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. ठीक है, ये म्यूट का बटन और कैमरा का बटन सभी के पास होगा. आप अपने आप को इस बटन को यूज करके म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं. During the session, I would request everyone to keep yourself on mute mode. लेकिन किसी भी टाइम पे, at any given point of time, if you want to ask any kind of a query, at that time you can unmute yourself. कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, उस टाइम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. ठीक है, I guess you are having paper and pen with you to note down few things. However, I will provide you the recording of this session. This session is being recorded और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी. But still, you should have a paper and pen with you so that if during the topic, if you find something that you're not clear about, so you can note down those things so that you can ask the questions based on those points. Or otherwise also you can note down the important things which will help you out later on when you will start practicing on the software. Another thing which I want is, I want you all to be very interactive. Okay, this is a simple request and it is for your own benefit. आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डोंट थिंक दैट इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बिकॉज आई नो यू पीपल आर जस्ट स्टार्टिंग विद दिस सॉफ्टवेयर. You people are not, you can say, professionals who are already handling it. So it means that you are a beginner, so you can ask any kind of a query, or it's good that you are already using one video platform, so it will be easier for you to understand the things. So these are the two requests which I want, that which I wish that you will fulfill. One is you will keep yourself on mute mode, and another is you will ask as many questions as you want. Okay, so that things will be clear to you. Now we'll start. सबसे पहले I'll guide you about the login process. कैसे आप साइन इन करते हैं. Maybe right now most of you have already signed in with the same ID and password as provided by our team to you. हो सकता है आप काफ़ी टीचर्स ने ऑलरेडी उसी आईडी और पासवर्ड के साथ किया हो, बट स्टिल अगर कोई गेस्ट अकाउंट के साथ भी है, अभी भी ज्वाइन एज अ गेस्ट किया है, सो डोंट वरी बिकॉज नाउ विल स्टार्ट विद दैट थिंग. बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम. आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं लॉगिन करने के. वन इज यू कैन लॉग इन बाय डाउनलोडिंग द टीम सॉफ्टवेयर. आप टीम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं. दैट इज द रिकमेंडेड प्रोसेस, क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि ओकेजनली इसको यूज करना है. यू विल यूज इट ऑन डेली बेसिस. आपने क्लास लेनी है तो आप इसको रोज यूज करेंगे. सो इट इज रिकमेंडेड कि आप टीम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम में और डेली उसी पे लॉगिन करें. एक बार जब आप लॉगिन कर लेते हैं, बार बार आपको लॉगिन नहीं करना होता. वो ऑटोमेटिकली जब आप सिस्टम ऑन करते हैं, आपका टीम सॉफ्टवेयर भी प्ले हो जाता है साथ में. दूसरा आपका है, आप वेब ब्राउजर के थ्रू कर सकते हैं. सपोज कीजिए आप कहीं और गए हुए हैं, तो आपके पास अभी वो आपका लैपटॉप अवेलेबल नहीं है जहां आपने डाउनलोड कर रखा है. तो जरूरी नहीं है आप किसी और के लैपटॉप पे भी डाउनलोड कीजिए. आप सिंपली अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे, ठीक है, या कोई भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, teams.microsoft.com, ये लिंक लिखेंगे teams.microsoft.com और अपना
साइन इन करेंगे इसमें, जो भी आपको आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है, ठीक है, आप साइन इन करेंगे। इस तरीके का आपको बॉक्स मिलेगा साइन इन के लिए। Fine. So right now I have already signed in with the same ID, so that's why it's showing my ID. Otherwise you will get a plain text box kind of a thing in which you can enter your ID. आप अपना ID और पासवर्ड जो है वो इसमें एंटर करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है, डू दिस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर आस्क्ड टू साइन इन। अगर आप वेब ब्राउजर पे भी यूज कर रहे हैं और आप इसको यस कर देते हैं तो आपको बार बार पासवर्ड नहीं एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आप सिर्फ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और आप इसमें लॉग इन कर पाएंगे। तो आप अगर अपने ही सिस्टम पे कर रहे हैं तो आप इसे यस पे क्लिक कर सकते हैं। और अब आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप विंडोज ऐप पे जाना चाहते हैं या फिर वेब ब्राउजर के थ्रू कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आप इसमें वेब ब्राउजर कर सकते हैं और आप वेब ब्राउजर के थ्रू इसमें एंटर कर पाएंगे। अगर आप फोन पे अटेंड कर रहे हैं, अगर आपने फोन के थ्रू क्लासेस लेनी है, सो इट इज मैंडेटरी वेदर यू आर यूजिंग अ एप्पल फोन और यू आर यूजिंग अ एंड्रॉयड फोन और यू आर यूजिंग अ विंडोज फोन, इट इज मैंडेटरी दैट यू डाउनलोड द टीम्स ऐप, ठीक है। अगर आपको फोन पे इस ऐप को यूज करना है तो आप लोग टीम्स ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने प्ले स्टोर से या अपने मार्केट स्टोर से, जो भी आपका ऐप स्टोर है आप उससे जाकर डाउनलोड करेंगे और फिर आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। वो आईडी और पासवर्ड बस आपको ध्यान रखना है जो आप टीम्स के लिए यूज करेंगे। जो आईडी और पासवर्ड आपको मिला है वो एक्चुअल में आपकी टीम्स की आईडी और पासवर्ड नहीं है, वो आपका ऑफिस 365 का आईडी और पासवर्ड होता है। और जो टीम सॉफ्टवेयर दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑफिस 365, तो इसलिए आपको सिर्फ टीम्स नहीं मिलता है। अगर मैं इस टाइम office.com पे जाऊं, सो आई कैन शो यू ऑल द एप्स विच यू गेट हियर। office.com पे जाएंगे, सेम आईडी पासवर्ड से जाएंगे, ये सारी एप्स आपको इसके साथ मिलती हैं, ठीक है। कंप्लीट 1 ईयर के लिए आपको इन सभी एप्स का एक्सेस मिलता है। वन नोट, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, यैमर, वाइट बोर्ड, बहुत सारी एप्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लानर बहुत ब्यूटीफुल ऐप है। सो देयर आर सो मेनी एप्स विच यू कैन एक्सप्लोर। आउटलुक मिलता है, आप अपना आउटलुक कन्फिगर कर सकते हैं जो सिर्फ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन मेल्स के लिए कर सकते हैं। सो लेकिन ये हमारी जो ट्रेनिंग है ये टीम्स पे फोकस है, तो आप office.com के थ्रू भी टीम्स पे जा सकते हैं और वहाँ से भी अपना लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। बट बेस्ट पार्ट अगेन आई एम टेलिंग यू, बेस्ट यही होगा आप टीम्स को डाउनलोड कर लें, ठीक है, ताकि आप बस डेली अपने यहाँ पर जब भी आप लैपटॉप में आए आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिखेंगे और आप टीम्स को यूज कर पाएंगे। दैट्स इट, आपको ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लॉगिन प्रोसेस सभी को क्लियर है? फाइन। अब हम बात करते हैं, अभी तो जिस तरीके से मैंने आपको लिंक दिया तो मे बी कुछ टीचर्स के लिए ये कंफ्यूजन था कि किस तरीके से एंटर होना है, राइट। बट आपका जब ये प्रोसेस वर्कआउट करेगा तो आप गेस्ट लॉगिन्स नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लासेस लेनी होंगी, ठीक है। जो टीम्स का वर्किंग मॉडल है दैट इज वेरी सिमिलर टू योर स्कूल वर्किंग। स्कूल में क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हमारे स्कूल में आ जाएगा और किसी भी क्लास में एंटर कर लेगा। स्कूल में प्रॉपर एडमिशन्स होते हैं, क्लासरूम्स क्रिएट होते हैं, हर क्लासरूम में स्टूडेंट्स अलॉट होते हैं, टीचर्स को बताया जाता है दैट यू विल गो टू 6th क्लास, यू विल गो टू 7th क्लास और आपको 6th और 7th में ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। एवरीथिंग इज यू कैन से प्री डिसाइडेड, राइट। सो इसमें भी आप पूरा वही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लासेस लेंगे तो इसलिए आपको ये टीम्स ये लिंक्स वगैरह नहीं सेंड करने हैं स्टूडेंट्स को। सब कुछ जो लिंक्स वगैरह स्टूडेंट्स को मिलेंगे वो इसके अंदर मिलेंगे। सो सबसे पहला प्रोसेस होगा हमारा लॉगिन करने के बाद क्लासरूम क्रिएट करना, राइट। नंबर 1 स्टेप इज क्रिएशन ऑफ द क्लासरूम। सेकेंड स्टेप इज एडिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन आवर क्लासेस, ठीक है। जनरली रिकमेंड ये किया जाता है कि बीइंग अ क्लास टीचर यू शुड क्रिएट द क्लासेस सो दैट बिकॉज यू हैव मच बेटर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स यू हैव इन योर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 6th A की क्लास टीचर हूँ तो मुझे बेटर तरीके से पता है कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, किसका नाम पूरा नाम क्या है। अगर 2 नाम के सेम स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको आइडेंटिफाई इजिली कर सकती हूँ। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि क्लास टीचर्स क्रिएट करें टीम्स को और उसमें सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं उनको ऐड कर दें। सब्जेक्ट टीचर हो आप या क्लास टीचर हो, डजेंट मैटर, आपकी परमिशन सेम रहेंगी। अगर आप क्लास में एडिड हो एज अ टीचर, इसका मतलब आप उस क्लास के ऑनर हो, जो स्टूडेंट्स होंगे वो सारे मेंबर होंगे, राइट। सो फर्स्ट प्रोसेस होगा क्रिएशन ऑफ क्लासरूम, सेकंड स्टेप होगा एडिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर टू द क्लासेस, थर्ड स्टेप होगा हमारा क्रिएशन ऑफ चैनल्स। अब चैनल्स क्या हैं? चैनल्स होते हैं हमारे टीम्स में फर्दर डिविजन्स। एक क्लास क्रिएट कर लिया हमने, अब स्कूल में क्या होता है, हमने क्लासरूम क्रिएट करते हैं, स्कूल में भी क्लासेस होती हैं, उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स बैठते हैं। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट एरियाज होते हैं।
कि साइंस की टीचर अब जा रही है तो उसमें सिर्फ साइंस से रिलेटेड ही डिस्कशंस होंगे। साइंस का कोई टेस्ट लेना है वो उस पर्टिकुलर टाइम में होगा, साइंस का कोई असाइनमेंट देना है, कोई भी नोट्स देने हैं, ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करना है, सो इसलिए वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब यहाँ पर भी आप चैनल्स क्रिएट करते हैं, वो आपके एरियाज हो जाते हैं टीम में कि अगर साइंस टीचर को कुछ करना है तो वो साइंस टीचर जो भी करेगी अपने चैनल के अंदर करेगी। मैथ्स टीचर का एक चैनल बन जाएगा क्लास के अंदर, मैथ्स टीचर ने अगर कुछ भी देना है, कुछ भी मैसेज कन्वे करना है स्टूडेंट्स को, वो अपने चैनल के अंदर करेगा। तो इस तरीके से आप चैनल्स बनाते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, चैनल्स क्रिएशन। फोर्थ स्टेप हमारा होगा क्रिएशन ऑफ मीटिंग्स, स्केड्यूलिंग ऑफ मीटिंग्स, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस तरीके से हम मीटिंग में अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। सो फोर्थ स्टेप होगा हमारा स्केड्यूलिंग ऑफ मीटिंग। फिफ्थ स्टेप होगा पोस्टिंग द लिंक्स टू द स्टूडेंट्स एंड सेटिंग मीटिंग परमिशंस। सो आई गेस आज हम अगर इतनी चीजें सीख लें दैट वुड बी सफिशिएंट। बाकी चीजें जो हम थोड़ा सा एडवांस्ड होगा कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे क्रिएट करने हैं, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स कैसे देनी है, उनको क्लास वर्क होमवर्क कैसे देना है, नोटबुक्स कैसे चेक करनी है, वो सारी जो चीजें होंगी दैट विल डू इन द सेकेंड सेशन, राइट। अभी तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं? No? Okay, then we'll proceed. Now you can see that I have logged into the Teams. ठीक है, मैंने वेब ब्राउजर पे अपने आप को लॉग इन कर लिया है मेरी आईडी और पासवर्ड के साथ। इस तरीके से आपको ये लेफ्ट रेल मिलती है जिसपे आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, एक्टिविटी का, चैट का, टीम्स, असाइनमेंट, कैलेंडर, कॉल्स। जब आप नॉर्मली टीम्स में लॉग इन करते हैं एज अ गेस्ट तो आपको ये असाइनमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये असाइनमेंट का ऑप्शन तभी मिलता है जब आपके पास एजुकेशनल आईडी होती है। तो जिस आईडी से, जो आईडी आपको हमारी टीम ने दी है उस आईडी से आप लॉग इन करेंगे तभी आपको ये असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा और टीम में जाके आपको क्लास नोटबुक का ऑप्शन मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर बॉक्सेस हैं, दीज ऑल आर द टीम्स विच आई हैव क्रिएटेड। आप जब लॉग इन करेंगे हो सकता है ये एरिया आपको ब्लैंक मिले या फिर कोई एक आधा ऑप्शन हो, यहाँ पे ज्वाइन और क्रिएट टीम का ऑप्शन हो सकता है आपको यहाँ बॉटम पे मिले, लेफ्ट साइड पे। अभी ये क्लासरूम मुझे विजिबल है क्योंकि मैंने इन्हें क्रिएट किया है, या हो सकता है किसी और ने इन्हें क्रिएट किया हो बट मुझे इसमें मेंबर बनाया हो, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप कोई क्लास क्रिएट करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स को आप उसमें मेंबर बनाएंगे, अलॉट करेंगे। तो स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना होगा, स्टूडेंट्स बस इसमें लॉग इन करेंगे और उनको वो क्लासेस यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। जो जैसे कि अगर मैंने क्लास 11th बनाई है ये, तो इसमें मान लीजिए मैंने 10 स्टूडेंट्स को ऐड किया है, तो उन 10 स्टूडेंट्स के पास ये क्लासरूम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब वो अपनी टीम्स में लॉग इन करेंगे उनको उनकी क्लास वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स एंड पे इट इज़ वेरी इजी, बस टीचर्स को इसको समझना है। टीचर्स के लिए भी डिफिकल्ट नहीं है ये सिस्टम, बस आपको इसको समझना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, राइट। सो अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ज्वाइन और क्रिएट टीम का। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं क्लासरूम क्रिएशन के लिए, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि क्रिएट टीम के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। नाउ आई एम हैविंग 4 ऑप्शंस। आपके पास क्लास का ऑप्शन है, पीएलसी, स्टाफ, अदर। आपको इसमें क्लास चूज करना है, ठीक है। जब आप क्लास टीम्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर आप बाकी टीम्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आप इसमें पूरा स्कूल का मॉडल प्ले कर सकते हैं। इट इज अ रेप्लिका ऑफ अ स्कूल मॉडल। तो यहाँ पर पीएलसी जो है वो एक टाइप की लर्निंग कम्युनिटी होती है जहाँ पे एजुकेटर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं। सारे एजुकेटर्स के पास सेम राइट होता है। स्टाफ टीम आप स्टाफ मीटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, स्टाफ को कुछ काम अलॉट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अदर टीम आप नॉर्मली हाउस क्लब्स, क्लब्स एक्टिविटीज या किसी भी random purpose के लिए, if you want to celebrate any event, if any event is coming, let's say Diwali function is coming and you want to celebrate Diwali, so हो सकता है कुछ वॉलंटियर स्टूडेंट्स हों, कुछ एडुकेटर्स हों जो दिवाली फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं, उनके लिए आप सेपरेट टीम बना सकते हैं। तो ये सारी वर्किंग इसमें हो सकती है, बट अभी हम क्लास टीम पे फोकस करेंगे, बिकॉज क्लास टीम वो टीम होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, आप उनको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, उनके साथ प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं, उन्हें असाइनमेंट्स देते हैं, उनका वर्क चेक करते हैं, ऑल दोज थिंग्स। यानी कि वो सारी चीज़ें जो हम क्लास में फिजिकल क्लासेस में करते थे वो सारी चीज़ें आप इस क्लास टीम में कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। नाउ इट इज आस्किंग द नेम ऑफ द क्लास। So generally in our schools we have names like this: grade 1, grade 2, or grade 2A, grade 2B, grade 2C, like this. So similarly I'll give a name. Let's say create a class for 6th D maybe. I don't know whether I have created the class by same name or not. So let's just try. Grade 6D I have created a class. Now it is showing the description which is optional. तो आप description में लिख सकते हैं why you are creating this kind of a class and who all will attend this. But generally इसकी need नहीं है,
क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट्स में इसकी नीड होती है, बिकॉज हम अपनी टीम को ओपन रखते हैं कि जो भी अटेंड करना चाहे अटेंड कर ले। बट यहाँ पर हम इसको क्लोज रखते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स को हम ऐड करें सिर्फ वही ऐड हो पाए उसमें, रेस्ट और कोई स्टूडेंट ऐड ना हो पाए। तो हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। The next part is giving us the option to add our students and teachers. तो ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है, इसलिए आप और क्लास टीचर्स ने करना है, सो इट विल नॉट बी ऑफ अ मच प्रॉब्लम टू यू, बिकॉज हो सकता है आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हो या 40 स्टूडेंट्स हो, एक बार आपने ऐड करना है और वो फिर पूरे एंटायर ईयर के लिए आपके पास वो क्लास रहेगी। जैसे ही हमने कुछ डमी आईडीज क्रिएट की हुई हैं, अब आपके स्टूडेंट्स का भी इस पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वैसे आपके हर स्टूडेंट की एक आईडी क्रिएट होगी। तो जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप नाम लिखना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स का, आपको सारे स्टूडेंट्स का नाम यहाँ नीचे दिखने लग जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर डेमो स्टूडेंट लिखा हुआ है और नीचे भी छोटा सा डेमो स्टूडेंट ही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का एडमिशन नंबर या यूनिक आईडी दिखेगी, जिससे अगर सेम नाम के भी दो स्टूडेंट्स हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके क्लास में कौन सा बच्चा है। तो इस तरीके से आप बस स्टूडेंट का नाम लिख के उनको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज करके ऐड करते रहेंगे। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट पे होवर करेंगे, अपना माउस लेकर जाएंगे तो आप उसकी कंप्लीट डिटेल देख पाएंगे, उसकी आईडी, उसकी क्लास, उसका नाम। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऐड करने के बाद आप इस ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से वो सारे स्टूडेंट्स आपका इस क्लास का पार्ट बन जाएंगे। सिमिलरली फिर आप टीचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो भी 6D में पढ़ाते हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट, उनका नाम लिखेंगे और फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी डमी टीचर आईडी, सो आई एम नॉट डूइंग दैट। अदरवाइज हो सकता है आपके 5 अलग अलग टीचर हो, एक टीचर मैथमेटिक्स का, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, कंप्यूटर, डिजाइन, ड्राइंग, मे बी देयर आर 7 टीचर्स, 10 टीचर्स, डजंट मैटर। यू विल ऐड द नेम ऑफ ऑल दोज टीचर्स एंड देन यू विल क्लिक ऑन ऐड। क्यों टीचर्स को ऐड करेंगे? ताकि उनके पास भी सेम राइट हो, वो भी इस क्लास में ज्वाइन कर सके, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकें और उनसे कोई भी मैसेज उनको भेज सकें। क्लोज करेंगे टीचर्स का नाम भी ऐड करने के बाद, और अब आप देख रहे हैं ग्रेड 6D हमारी क्लास बन गई है। ठीक है, बहुत सिंपल है क्लास को क्रिएट करना। क्लास क्रिएट कर दी है और उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स को हमने ऐड भी कर दिया है। क्या इतना प्रोसेस आप सभी को क्लियर है? Is this process clear to everyone? If you have any kind of a doubt, any query, you can ask me. Suman ma'am, do you want to ask something? Yeah, Yes, it's please. clear. Okay, thank you. Yeah, anyone else? Because please don't hesitate to ask, because ultimately you have to use this program. So it would be better if you will ask as many questions as you want, so that it will be easier for you while doing things. Should I proceed? एक्सक्यूज मी Yes, ma'am. Yes, Rekha ma'am. मैम, अगर हम किसी स्टूडेंट को रिमूव करना चाहते हैं, बाय मिस्टेक हमसे ऐड हो गया वो स्टूडेंट, इट इज पॉसिबल? Yes, that's possible. I'll show you that. That's possible. Okay, now I'm coming back to that part. So now we have created a class. Now I want to see the members. Okay, हो सकता है आपने क्लास क्रिएट की है, 10 दिन हो गए हैं, now you don't remember कि आपने कितने टीचर्स को ऐड किया है, कोई टीचर्स में है या नहीं, या कोई वो स्टूडेंट है वो कंप्लेन कर रहे हैं उसे असाइनमेंट मिली है या नहीं मिली, तो आप चेक कर सकते हैं किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, किसी को रिमूव करना है, किसी और को ऐड करना है। तो आप उस क्लास में, यहाँ पर जैसे ऑल टीम्स है आपके पास, ठीक है, आप उस क्लास में जाएंगे, ये टीम बन गई हमारी, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लास नेम के सामने 3 डॉट ऑप्शन होंगे, इस पे जाएंगे और मैनेज टीम आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है, मैनेज टीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन मेंबर्स का है। ऑनर्स के अंदर आपको सभी टीचर्स के नाम दिखेंगे और यहाँ पर मेंबर्स कॉलम में आपको सभी स्टूडेंट्स के नाम दिखेंगे। Now you can see all the students which we added. We added only 3 students, so that's why I can see 3 names under the members column, and here I can see the teacher's name. Here you have this option to remove the students. For example, I don't want demo student 2 to be a part of this team. I have added him by mistake, so I can click on this cross button and very soon this student will be out of this team. So now I can see that only 2 students are there in my team, right? Now in case there is a new admission in our class and we want to add that student after the creation of team, कोई new student आया है हमारे स्कूल में और हम उसको team हमने create कर दिया, उसके बाद add करना चाहते हैं, तो that is also possible. You will click add member and then you will write the name of the student, you will select it, you will click on add,
and that student will be added in the list. So now I can see that again I have 3 members, right? How it is recommended that when you create the team, at that time you should add the students, but in case that student was not a part of that class at that time, so in that case you can also add any new student even after the creation of the class. Okay, but he will get the content only after that time. He'll not get the previous content. Now here we also have this mute student option. अब ये जो म्यूट स्टूडेंट ऑप्शन है ये आपका किसी भी तरीके से माइक्रोफोन के साथ रिलेटेड नहीं है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये स्टूडेंट्स को म्यूट करने के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स का चैट पार्ट को म्यूट करने के लिए. फॉर एग्जांपल here when we are into this meeting we have this chat show conversation option where yeah, yes, Suman ma'am, you're right that when you will be creating the things at that time you may find some kind of issues, but yes, so let's continue. Here this is the meeting chat part where anybody can write any message. For example, if I'll write something, it will be visible to all the participants. ये सभी participants को दिखेगी ये chat. So ये option आपके students भी use करते हैं आपसे questions put up करने के लिए. For example, during the class आप कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको student को लगता है कि ये चीज़ समझ नहीं आया, जैसे सुमन मैम ने लिखा है, गीतिका जी ने लिखा है इसमें, तो इस तरीके से आपके students भी लिखते हैं. But कुछ students इसको बहुत ही casually ले लेते हैं. So they just start on typing something or the other. They just disturb the whole class by just sending messages one after the another. So उस चीज में अगर आप उनके लिए ये chat का option disable करना चाहते हैं, so उस चीज के लिए ये mute option है. For example, my demo student one is a very, you can say, notorious element. He keeps on disturbing the class, so I can mute that student. So now when he'll come to this meeting chat area, he'll not find an option to type here. Fine. So in this way you can disable the chat part for your students in the public areas, only in the public areas. So the public area is this meeting chat area where everybody can read and write, and one area is this post tab area. This will discuss. Here also students can write. So अगर आप यहाँ से mute करेंगे, so ये area भी students के लिए disable हो जाएगा. ये अभी मैं आपको बाद में explain करूँगी. Now the next part is okay, the mute feature is clear. The next part is creation of the channels. Yes, please. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, please. if we want to chat with a single student, then is it possible? Yes, private chat options are there. When you come to your, wait. When you come to this left rail, here you have the option of chat. So you can click here, and this is the new chat option, new chat. Here you will write the name of the student, and these are all the messages which I have sent to demo students. So this will appear in the chat, and I can also send a new message like this. So I can also attach files like this is a image file. This is an image file which I have sent to my demo student. In this manner, you have all other options which will be discussed a little later. But yes, you can chat individually. Okay. Now coming back to our team. So the next part is creation of the channels. So channels I have already told you. Channels क्या होते हैं? हमारे सब divisions होते हैं team में. It is not mandatory for you to create channels, but again it is a recommended procedure that you should create some channels in the class because it helps you to get organized, basically to keep your teams organized, to keep your classes organized. Wait a minute. Okay, so you can see that there is a general word written after 6D class. So general is the channel which you get by default. General channel आपको by default मिलता है. जितने भी teams आप create करेंगे सब में आपको general channel visible होगा. ठीक है. अगर आप चाहते हैं आप जनरल चैनल में ही वर्क करें तो जनरल चैनल में आपको सबसे ज़्यादा टैब्स मिलते हैं. सारे सब्जेक्ट टीचर्स इसी चैनल में वर्क कर सकते हैं. लाइक जो भी मैसेजेस सेंड करने हैं, जो भी लिंक्स, मीटिंग के लिंक सेंड करने हैं, वो आप जनरल चैनल में ही भेज देंगे. बट अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाए तो आप चैनल्स को ऐड कर सकते हैं. कैसे? 3 डॉट पे क्लिक करके ऐड चैनल पे क्लिक करेंगे और सपोज कीजिए मैंने इंग्लिश का एक चैनल क्रिएट कर दिया. रेस्ट ऑफ द थिंग्स. हेलो, यस, समवन इज सेइंग समथिंग. Is someone asking something? No? Okay. Then what should we do? Okay, let's come back to that part. मैंने इंग्लिश का एक चैनल ऐड किया. 3 डॉट ऑप्शन पे गए, ऐड चैनल पे गए. नाउ आई हैव सिंपली रिटन द नेम ऑफ माय सब्जेक्ट.
जनरली इट इज रिकमेंडेड कि आप सब्जेक्ट वाइज चैनल क्रिएट करें, वही सबसे बेस्ट मीडियम रहता है, बट अदरवाइज इट्स योर चॉइस। हमने इंग्लिश लिखा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन ऐड। सो इट इज अ सिंपल थिंग, 3 डॉट पे जाना है, ऐड चैनल पे क्लिक करना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, ऐड चैनल पे गए, लिखा साइंस, ठीक है, और ऐड कर दिया, दैट्स इट। अब क्या हो रहा है इससे कि बस ये एक एक अलग अलग एरियाज बनते जा रहे हैं। मेन एरिया फिर भी आपका जनरल ही रहेगा, जहाँ पे आपकी क्लास नोटबुक रहेगी सारे सब्जेक्ट्स की, और असाइनमेंट रहेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के ग्रेड रहेंगे। बाकी चैनल्स में आपके पास मेनली बस ये पोस्ट टैब होता है, जिसमें आप उनके लिंक्स भेजते हैं और उनको कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। सो इसलिए हमें चैनल्स नीडेड होते हैं। तो इंग्लिश की टीचर ने कोई भी मैसेज कन्वे करना है स्टूडेंट्स को, वो इंग्लिश चैनल के अंदर करेंगी। कोई उनको लिंक भेजना है मीटिंग का, दैट यू विल डू अंडर द इंग्लिश चैनल। साइंस टीचर ने कुछ सेंड करना है, दैट यू विल डू अंडर द साइंस चैनल। सो इस तरीके से अगर स्टूडेंट को इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ही विल सिंपली कम हियर अंडर द इंग्लिश चैनल। उसको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, न्यू कन्वर्सेशन में जाएंगे, जरूरी नहीं है उस टाइम आप मीटिंग में हो, ओके। हो सकता है रात को 10 बजे स्टूडेंट्स को लगा कि इसमें कुछ डाउट है और 2 दिन में टेस्ट है, तो मैं अभी से अपना क्वेश्चन पूछ लूँ। हो सकता है टीचर, नहीं तो हो सकता है कोई और स्टूडेंट मेरी हेल्प कर दे। तो आई कैन सिंपली राइट, कैन एनीवन हेल्प मी ऑन ऑन मे बी प्रोजेक्ट 1, ओके। इस तरीके से आपका कोई स्टूडेंट भी मैसेज कर सकता है और बाकी स्टूडेंट रिप्लाई कर देंगे, उनके पास कुछ नोट्स बने हुए हैं, या फिर कोई स्टूडेंट पूछ सकता है व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू नीड। सो इस टाइप से आपका प्रोडक्टिव एक ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, जो सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड ही होगा। साइंस में कोई स्टूडेंट लिख सकता है, कैन एनीवन गिव मी द डिटेल्स ऑफ मे बी प्रोजेक्ट ऑन हार्ट given by ma'am, ओके। सो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट उस टाइम मीटिंग में ही हो, आपकी वर्चुअल क्लास चल रही हो, बट कभी भी स्टूडेंट को लगता है उसे किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, तो वो उस चैनल में आके अपना प्रॉब्लम, अपना मैसेज छोड़ देगा। और जरूरी नहीं है टीचर, कोई भी अगर कोई और स्टूडेंट उसको हेल्प आउट करना चाहता है तो दैट स्टूडेंट कैन डू। और ये सब आप पढ़ सकते हैं, बीइंग अ टीचर आपके कंट्रोल में रहती हैं ये सब चीज़ें। आप किसी स्टूडेंट को म्यूट कर सकते हैं अगर कोई कुछ ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज लिख रहा है, या कुछ भी जो आउट ऑफ द लिंक है, उससे रिलेटेड नहीं है आपकी कन्वर्सेशन से। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा कुछ लिख रहा है तो आप उसको वॉर्न भी कर सकते हैं, उसको मीटिंग्स अपनी टीम से भी रिमूव कर सकते हैं, या सिर्फ उसके चैट भी डिसेबल कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी फीचर्स विद यू by which you can control the discipline in the class, right? So now we have created these kinds of channel. हम अगर चाहें किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए हम प्राइवेट चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज अब क्या होगा, ग्रेड 6D में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली जनरल, इंग्लिश, साइंस जितने चैनल्स आप बनाएंगे उन सबका पार्ट बनते रहेंगे। बट अगर इफ़ आई वांट कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं, सपोज कीजिए संस्कृत सब्जेक्ट के लिए, इफ़ आई वांट ऐसा चैनल बनाऊं जिसमें इस क्लास के सिर्फ 5 ही बच्चे पार्ट लें, सिर्फ उन्हीं को ही वो मैसेज विजिबल हो, तो क्या करना है, प्राइवेसी में स्टैंडर्ड था बाय डिफॉल्ट, आपको इसको प्राइवेट पे रखना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट? फिर आपको सेम विंडो मिलेगी जहां से आप स्टूडेंट चूज कर पाएंगे। बट वन कंडीशन इज देयर दैट स्टूडेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ ग्रेड 6D। अगर मैं कोई ऐसा स्टूडेंट चूज करूंगी, जैसे डेमो स्टूडेंट 5 को हमने इसमें पार्ट नहीं बनाया था, तो डेमो स्टूडेंट 5 चूज करूंगी और फिर ऐड करूंगी, तो इट विल गिव मी अ एरर मैसेज, ठीक है, द यूजर इज नॉट द मेंबर ऑफ द टीम। तो वो एटलीस्ट आपकी क्लास का पार्ट होना चाहिए, तभी आपके चैनल का पार्ट हो सकता है। तो अब सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मैंने पार्ट बनाया है। अब आप देख रहे हैं कि संस्कृत के सामने एक लॉक काइंड ऑफ अ सिंबल है, जिसका मतलब है ये जो चैनल है ये लॉक्ड है अभी, और आई मीन टू से इट इज अ प्राइवेट चैनल, जिसमें सभी जो पार्टिसिपेंट है 6D के, वो सब पार्टिसिपेंट इसका पार्ट नहीं है। तो संस्कृत में अगर कोई भी टीचर कोई मैसेज करती है, तो दैट मैसेज विल बी विजिबल ओनली टू डेमो स्टूडेंट, बिकॉज डेमो स्टूडेंट ही सिर्फ इसका पार्ट है। बट आपको हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे प्राइवेट चैनल्स नहीं बनाने हैं, बिकॉज मीटिंग ऑर्गेनाइज करना प्राइवेट चैनल के लिए इट इज यू कैन से लिटिल कॉम्प्लेक्स। बाकी इसके लिए चैनल्स के लिए मीटिंग स्केड्यूल करना इज वेरी इजी, बट प्राइवेट चैनल के लिए आपको मीटिंग का जो लिंक है वो मैनुअली यहाँ पर सेंड करना पड़ता है, इनके लिए ऑटोमेटिक लिंक जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप प्राइवेट चैनल कोई 1 या 2 रख सकते हैं अपनी क्लास में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जनरली क्या होता है कि ऐसा कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स पार्ट नहीं होते। आर यू हैविंग एनी काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट इन द क्लासेस?
maybe which is not opted by all the students? ऐसा कोई subject है आपका? Not yet. We are following the main 5 subjects. No, ma'am. Okay, then it's Punjabi is fine. there additional. Punjabi is there. But we are not taking the lectures It's right additional. now. Okay. Otherwise, maybe in the future, if you want to take the lecture, so for Punjabi language, you can create this kind of a channel where only few students who have opted that subject, they will become the part. Otherwise, one more choice is there even for that thing. Maybe, for example, there are 4 sections. Let's say 7th A, 7th B, 7th C and 7th D. आपको लगता है हर क्लास में 5 to 7 स्टूडेंट्स हैं या जितने भी रैंडम स्टूडेंट्स हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पंजाबी ऑप्ट किया है जिन्होंने, सो इट इज़ बेटर कि आप उनके लिए एक स्पेसिफिक टीम बना दें जिसमें चारों सेक्शन से आप पंजाबी के बच्चे सिर्फ ऐड कर दें. ठीक है, एक क्लास ऐसी क्रिएट कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही टीम का पार्ट हो सकता है, एक स्टूडेंट मल्टीपल टीम्स का, टीचर भी मल्टीपल टीम्स का पार्ट हो सकती है. तो आपके पास 2 चॉइस है उस केस में, या तो प्राइवेट चैनल क्रिएट कर दें उस पंजाबी सब्जेक्ट के लिए, या फिर एक अलग टीम क्रिएट कर दें और उसमें 5 स्टूडेंट सेक्शन ए से, 5 सेक्शन बी से, 5 सेक्शन सी से और 5 सेक्शन डी से, सिर्फ वही 20 स्टूडेंट्स को ऐड कर लें जो पंजाबी पढ़ते हैं, ताकि उनके लिए आप एक कलेक्टिव मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पाएं. जब भी आप क्लास लें, हो सकता है वीक में आप सिर्फ एक बार पढ़ाएं. अब आपके पास इस टाइप का प्लेटफॉर्म है तो मे बी यू विल डिसाइड टू स्टार्ट टीचिंग एडिशनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो. तो उसमें क्या होगा, वीक में आपने एक बार क्लास लेनी है, एक टीम बना दी, तो उन 20 स्टूडेंट्स की एक टाइम पे एक क्लास हो जाएगी, बहुत ईजी. Fine. So it's up to you. I'm only telling you the options. Rest depends upon you how you want to continue with it. Fine. I'm having few queries related to this class. So Yes, basically, please. your channels is just like our classes. So No, you're just no, taking no, them. no. Channels are not kind of a classes. Basically, teams are the classes. Okay. Yeah, and the channels are just a medium to segregate that thing, so that in English you can send the details of the English messages related to English, links of the meetings for English language, so that if a student want to search something related to English subject, or if he wants to post a query, if he's having a doubt in particular, maybe chapter 1 of English, so he will post his query under the English channel. तो इंग्लिश की टीचर सिर्फ अपना चैनल चेक करेगी और इंग्लिश की टीचर को पता चल जाएगा कि किसी स्टूडेंट को इसमें कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ मैसेज रिप्लाई करना है. दैट्स इट. Ma'am, one more query I'm having. Like we have been provided with the IDs and password. So Yes. can we create a meeting right now, a demo meeting kind of? Because before we enter into the class in front of the students, can Yes, we yes. all teachers arrange? Like Yes, if yes, yes. suppose For sure. जैसे Neha Bhatia has organized English class for all the Okay. students, and all the Right. teachers can they act as a student with the help of Yes, that, yes, so yes. that we can have a Definitely. demo one on Monday or maybe on coming Tuesday. Definitely, And and that is actually the recommended procedure, that after attending this session 1, you should create dummy classes and you should create dummy meetings also. And some of the teachers can act as teachers in this, rest of the teachers can join as a student, and you all can see that what kind of permissions you will have. Okay, so I'll also brief you the procedure, that how you can start with those things. Fine. Any other doubt? Any other query? Anyone else? Okay, then let's come back to that portal. Now, now the next part is creation of the meetings, scheduling of the meetings, right? So I'm coming to the calendar. Right now we are into teams. Okay, teams का मतलब है classes. So अभी हम एक क्लास में है 6D में. अब मुझे इस क्लास के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, मीटिंग शेड्यूल करनी है. जैसे टुडे इज सैटरडे, सो आई वांट टू शेड्यूल द मीटिंग फॉर मंडे मॉर्निंग. हाउ आई विल डू दैट? आई विल गो टू द कैलेंडर. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर के, स्काई ब्लू कलर में, लाइट ब्लू शेड में बहुत सारे यू कैन से काइंड ऑफ अ स्लॉट्स. दिस इज अ कैलेंडर. इन दिस कैलेंडर यू हैव डिफरेंट स्लॉट्स. तो ये सारी वो मीटिंग्स है जो मैंने क्रिएट की हैं, या वो मीटिंग्स जो मैंने अटेंड करनी है किसी और ने क्रिएट की हैं. ठीक है, आपने कोई मीटिंग क्रिएट करनी है बीइंग अ टीचर, आप कैलेंडर में आएंगे और न्यू मीटिंग पर क्लिक करेंगे. ठीक है, न्यू मीटिंग पे आए, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग यू कैन ऑल्सो नोट डाउन द थिंग्स. सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है, इट इज आस्किंग यू टू गिव अ नेम फॉर योर मीटिंग. अब इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी मीटिंग को, बट इट शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर फॉर योर स्टूडेंट्स. उनको पता चलना चाहिए कि ये किस चीज़ की क्लास है,
जैसे सपोज कीजिए हमने कौन सी टीम में थे, हम 6D में थे, सो 6D के लिए मैं क्लास मीटिंग क्रिएट कर रही हूँ, तो आई कैन सिंपली राइट 6D और मुझे इंग्लिश की क्लास लेनी है, सो आई कैन राइट इंग्लिश। और हो सकता है ये मेरा थर्ड सेशन हो, मैं 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ, सो आई कैन राइट लाइक दिस थर्ड सेशन। अगर आप डेट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज डेट स्टूडेंट्स को विजिबल होती है। सेकेंड ऑप्शन आपका जो है दैट इज आस्किंग यू टू ऐड द अटेंडेंस। नाउ स्टूडेंट्स को का नाम आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स को ऐड चैनल में ऐड किया जाता है, उनका जो चैनल हमने क्रिएट किया वही ऐड कर देंगे तो सारे स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली लिंक मिल जाएगा। ये एरिया आप यूज कर सकते हैं, मे बी लेट्स से कि देयर इज समवन, मे बी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर इज देयर और मे बी योर प्रिंसिपल वांट्स टू सी ऑल द लिंक्स। सो आप सारी टीचर्स को गाइड कर सकते हैं, बीइंग अ कोऑर्डिनेटर और बीइंग अ प्रिंसिपल, दैट व्हेनेवर यू विल क्रिएट अ न्यू मीटिंग यू हैव टू ऐड माय मेल एड्रेस। तो अगर आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो आपकी टीम का पार्ट नहीं भी है, क्योंकि अगर टीम का पार्ट है तो उन्हें चैनल के अंदर ही मिल जाएगा लिंक, अगर टीम का पार्ट नहीं है आपका कोऑर्डिनेटर तो आप उनका इस तरीके से मेल एड्रेस लिख देंगे, जैसे मैंने अपना मेल आईडी यहाँ पर लिखा है। जैसे ही आप मेल आईडी कंप्लीट करेंगे, जैसे ही आप मेल आईडी कंप्लीट करेंगे आपको ये नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इनवाइट दिस मेल आईडी, यू विल क्लिक, तो क्या होगा उनको ऑटोमेटिकली ईमेल इनविटेशन चला जाएगा, चाहे वो आपकी क्लास का पार्ट ना भी हो तो भी उनको ईमेल इनविटेशन चला जाएगा और वो आपकी क्लास को अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, इसमें आप मल्टीपल मेल्स भी ऐड कर सकते हैं बाय द वे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है दैट इज टू सेट द डेट। नाउ आई वांट टू schedule it for Monday, that is 21st, so I'm selecting 21st, but I want it to be scheduled from 9 a.m. to 10 a.m. Fine, so I'm selecting 9 a.m. as the starting time and 10 a.m. as the ending time. Now it is not a kind of a foundation that you have to take only 1 hour class. If you want to take a class for 1 hour 30 minutes you can do that, but generally we take class for half an hour, 40 minutes or maybe 1 hour, so you can do that. Then the next thing is even after 10 a.m. your class will not end abruptly. ऐसा नहीं होगा आप क्लास में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं 10 बज गए और बस एकदम से आपकी क्लास abruptly एंड हो गई, ऐसा नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन सिर्फ स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि ये सेशन 1 घंटे का है, इसका ये मतलब नहीं है कि 1 घंटे के बाद अपने आप क्लास एंड हो जाएगी। आप जब तक क्लास एंड नहीं करेंगे, बीइंग अ टीचर आप क्लास एंड नहीं करेंगे तो वो क्लास एंड नहीं होगी। अगला ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपका जो टाइम टेबल है वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, सपोज कीजिए मेरे मंडे को इट इज़ फिक्स दैट मंडे को मेरा ये टाइमिंग रहता है, ट्यूसडे को मेरा ये टाइमिंग रहता है, सो मैं कैलेंडर में ऑटोमेटिकली फिक्स कर सकती हूँ। बट आपको क्या करना है, आपको ऐसा टाइम टेबल, ऐसा स्केड्यूल फॉलो करना है जहाँ पे आप डेज डिफरेंट यूज़ कर लें, अगर आप चाहते हैं कि टाइम टेबल एक ही बार में आपका सेट हो जाए। अदरवाइज आप डेली लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश का लिंक एक बार क्रिएट करूँ और हमेशा मेरे बच्चे वही लिंक यूज़ कर दें, दैट्स सेट, मुझे बार बार क्रिएट ना करना पड़े, मीटिंग की परमिशन से एक बार सेट हो जाए, मीटिंग का लिंक एक बार बन जाए। और तो उसके लिए क्या करना होगा, आप टाइम चेंज मत कीजिए बार बार क्लास का, डेज चाहे चेंज कर दीजिए, टाइम मत चेंज कर दीजिए। जैसे कि आई वॉन्ट कि ये क्लास डेली मंडे टू फ्राइडे मुझे इंग्लिश की क्लास लेनी है, तो डेली 9 AM to 10 AM बस मेरी इंग्लिश की क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी एवरीडे मंडे टू फ्राइडे। मैं चाहती हूँ डेली ही लेनी है मंडे टू संडे, सो आप ये डेली का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट कि एक वीक में सिर्फ एक बार लेनी है तो 21st को जैसे हमारा मंडे है तो एवरी मंडे ये क्लास ऑर्गेनाइज हो जाएगी। सिमिलरली यू हैव द ऑप्शन ऑफ मंथली, ईयरली, और लैपटॉप में आपको एडिशनल ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज करने का। सपोज मैं चाहती हूँ कि ये मेरा टाइम टेबल 15 दिन के लिए फॉलो हो, फिर मैं 15 दिन बाद अलग टाइम टेबल कर दूँ, तो मैं 21st से लेके, सपोज कीजिए 21st से लेके मैं अभी इसको रखती हूँ 5th तक। ओके, सो आई एम सिलेक्टिंग हेयर, यहाँ पर ओके अभी हम वीक लेते हैं और एंड डेट लेते हैं हम 30th, ठीक है, या फिर अगर हम दूसरे मंथ्स में जाना चाहते हैं 5th तक जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। अब मेरा ये क्या होगा, रिपीट एवरी वीक होगी मंडे को, ठीक है, 21st से 5th तक, बट मैं चाहती हूँ कि एवरी वीक नहीं, नंबर ऑफ डेज पे रिपीट हो, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मुझे एक क्लास मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को लेनी है, तो मैं इजीली अपना टाइम टेबल इसमें सेट कर दूंगी। अब मुझे डेली बेसिस पे लिंक नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली मंडे को, वेडनेसडे और फ्राइडे को मेरे स्टूडेंट सेम लिंक से
वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, राइट? तो अब मैं सेव कर रही हूँ, every Monday, Wednesday, Friday I have scheduled this class starting from 21st and till 5th of October, right? अगला ऑप्शन आपके पास है चैनल को ऐड करने का। चैनल को कैसे ऐड करेंगे? अब हमने क्लास क्रिएट की थी ग्रेड 6D, सो दिस वाज अवर क्लास। अब इसमें आप देख सकते हैं हमने इंग्लिश का चैनल क्रिएट किया था, साइंस का क्रिएट किया था, एक संस्कृत का भी क्रिएट किया था जो हमारा प्राइवेट चैनल था। तो हमारा प्राइवेट चैनल यहाँ पे विजिबल नहीं होता है, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि प्राइवेट चैनल के लिए मीटिंग अरेंज करना लिटिल बिट यू कैन से इट इज complex task, or maybe you have to send it manually, so that's why it is you can say a lengthy process, not complex but lengthy. So but हमारे केस में प्रॉब्लम नहीं है because we'll be creating the standard channels. अब हमने ये क्लास इंग्लिश के जो लिंक है इंग्लिश चैनल के लिए बनाया है, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और लोकेशन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर जो भी मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं अपनी इस क्लास के लिए वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटी करवानी है, सो आई वांट देम to have a chart paper with them while they attend this class, so I can just send a message accordingly, please arrange a chart paper and keep it with you before you join the class, right? Okay, now you will click the send button and we will look. Okay, right now we are in the work week, which means Monday to Friday, but I want to see all the days. So I'll click here and then I'll come to week. But here we are not having any meeting. Why? Because we started the meeting to be scheduled from 21st. So we'll come to the next week. Now you can see that on Monday, on Wednesday, on Friday, you have the meetings because we scheduled this class for Mondays, Wednesdays, and Fridays. So I can see my class on Monday, Wednesday, and Friday. Then I'll come to the next week. Here also I can see my class on Monday, Wednesday, and Friday, and then I'll come to the next week. And here I'm only having my class on Monday. Why not on Wednesday and Friday? Because we only scheduled the class till 5th of October. So I'll not have the class after 5th. Fine. So this is how you set the classes. Now you also need to set the meeting permissions. But before going to the meeting permission, I want to show how your student will receive the link. अब इसमें आपको स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप से, ईमेल से लिंक सेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी क्लास में एंटर करेंगे, क्लास में जाएंगे। अभी संस्कृत चैनल में है, हमें कोई लिंक नहीं दिख रहा, हमने इंग्लिश चैनल में सेंड किया था, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा लिंक ऑलरेडी आ गया। दिस इज अ लिंक। सो जो मैसेज हमने भेजा था वो भी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। जैसे आपको ये विजिबल हो रहा है लिंक, सेम तरीके से आपके स्टूडेंट्स को विजिबल होगा ये लिंक। प्लीज अरेंज अ चार्ट पेपर एंड कीप इट विद यू बिफोर यू ज्वाइन द क्लास। ये मैसेज था, मीटिंग का नाम रखा था 6D इंग्लिश 3rd सेशन, और कब कब होगी ये क्लास? मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को 9 AM पे। कब तक स्केड्यूल ये फॉलो होगा? 5th of October तक। और स्टूडेंट्स अपने कैलेंडर में जाएंगे तो स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से उनके स्लॉट, 6D के जितने बच्चे होंगे, 6D के सारे बच्चों को इस तरीके से उनके जो स्लॉट्स हैं वो यहाँ पर बुक दिखेंगे, और वहाँ से भी वो ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, कैलेंडर से भी, या फिर अपने टीम में आके इस ब्लू बार को क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। जब वो ब्लू बार पे क्लिक करेंगे तो उनको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। ठीक है, जो ये आपको तो डिटेल पेज ओपन हो रहा है, स्टूडेंट के लिए डिटेल पेज ओपन नहीं होगा। स्टूडेंट के लिए सिर्फ छोटी सी डिटेल ओपन होगी कि ये 9 से 10 बजे तक क्लास है, और ज्वाइन बटन उनको दिखेगा, वो ज्वाइन क्लिक कर पाएंगे। राइट, इतना क्लियर है सभी को कि आपको कैसे मीटिंग शेड्यूल करनी है? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? This is clear, but ma'am, if we want to add 2 sections at a time, for example 6D or 6C, Right. दोनों को हमने ये लिंक इकट्ठा सेंड करना है, जी, then जी, it जी. is possible. Yes, yes, that will be possible. I'm coming to that option. So what you will do is now what I have done is I have got the link. Similarly, all my students will receive the link like this. Now I'm again going to the calendar. आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें कुछ सेटिंग्स करना जरूरी होता है, दैट वी विल डू। अब हमने ये सीरीज में मीटिंग की है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे हर क्लास पे जाके सेटिंग करनी है। मैं इस सीरीज की किसी एक क्लास पे मीटिंग की सेटिंग्स कर दूंगी, दैट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू ऑल द क्लासेस। तो हमारी बहुत सारी अराउंड 9 क्लासेस हैं मे बी इसमें, तो मुझे सिर्फ किसी भी एक क्लास पे सेट करना है। तो सेट कैसे करेंगे? आप इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से डिटेल पेज ओपन होगा। इस बार आप मीटिंग ऑप्शंस में जाएंगे, मीटिंग ऑप्शंस पे जाएंगे
और जो आपका पेज होगा वो आपके ब्राउजर में ओपन होगा, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा। उसमें आपको दो चीजें चेंज करनी है, एक हु कैन बाईपास द लॉबी, ये जो फर्स्ट एरिया है, और एक ये हु कैन प्रेजेंट। हु कैन प्रेजेंट मतलब कौन कौन प्रेजेंटर होगा। मीटिंग में जो प्रेजेंटर होता है वो टीचर होता है, उसके पास स्पेशल राइट्स होते हैं टू म्यूट, टू रिमूव स्टूडेंट्स। सो हु कैन प्रेजेंट में आपको एवरीवन बाय डिफॉल्ट होता है, इसको चेंज करके ओनली मी करना है, ताकि जो प्रेजेंटर के राइट्स हैं वो सिर्फ टीचर्स के पास हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर वो ये सेटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को म्यूट करना, रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने जब भी मीटिंग स्केड्यूल करनी है, दोबारा से बता रही हूँ, मीटिंग स्केड्यूल करनी है, मीटिंग स्केड्यूल करने के बाद उस पर आएंगे और मीटिंग ऑप्शंस पे जाएंगे, वो पेज ब्राउजर में ओपन होगा। फोन पे भी ऑप्शन होता है, हु कैन प्रेजेंट में एवरीवन लिखा होगा, उसको ओनली मी करेंगे। हु कैन बाईपास द लॉबी में आपका सेक्शन है पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, लॉबी एरिया को कौन कौन बाईपास कर सकता है। तो जो पर्सन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं सिर्फ वो डायरेक्टली मीटिंग में आ सकते हैं, मतलब आपके स्टूडेंट्स भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो वो भी आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपसे पहले मीटिंग स्टार्ट ना कर पाएं तो आप इसको भी ओनली मी कर देंगे और सेव कर देंगे। अब आपके स्टूडेंट्स मीटिंग एरिया में सॉरी वेटिंग एरिया में, लॉबी एरिया में वेट करेंगे, आप क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप उनको एडमिट करेंगे, तभी वो क्लास में ज्वाइन कर पाएंगे। और किसी ड्यूरिंग द सेशन अगर आप किसी स्टूडेंट को रिमूव करते हैं तो भी वो दोबारा से ज्वाइन नहीं कर पाएगा, इवन इफ विल हैव द लिंक, तो उसको परमिशन लेके ही ज्वाइन करना होगा, राइट। फिर आपके पास यहाँ पर उसी डिटेल सेशन में यहाँ पर ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग लिखा हुआ आ जाता है, स्केड्यूल हो जाती है क्लास। दिस इज एक्चुअली द लिंक ऑफ योर क्लास। Now we scheduled this class for September 21st 9 a.m. to 10 a.m. Okay, so I can just copy the link। और आपको लगता है कि मुझे क्लास मर्ज करनी है तो आप टीम्स में जाएंगे और जिस भी क्लास में आपको इसको मर्ज करना है, सपोज कीजिए मैं चाहती हूँ ओके, लेट्स टेक एनी टीम। सपोज कीजिए मुझे डेमो क्लास नोटबुक में इसको मर्ज करना है या फिर थर्ड बी के साथ मर्ज करना है बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जेड रीजन। तो थर्ड बी में भी आपके पास चैनल्स होंगे, आप कोई भी चैनल सेलेक्ट करेंगे। राइट नाउ आई एम ओनली सिलेक्टिंग दिस जनरल चैनल, इसमें हमने और टीम्स और चैनल्स क्रिएट नहीं किए हुए हैं। पोस्ट टैब, किसी भी चैनल में आपके पास ये पोस्ट टैब होता है। पोस्ट टैब में आएंगे, कन्वर्सेशन पे सिलेक्ट करेंगे और लिख देंगे मीटिंग लिंक। तो मर्ज करने के लिए आपको ये जो लिंक होगा वो मैनुअली सेंड करना होगा। डेट लिख देंगे मीटिंग की, मैंने ये 21 सितंबर के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, 21 सितंबर 2020। और टाइम लिख देंगे, आई वांट टाइम एज 9 AM to 10 AM, right? And then you will post the links, paste the link and then you will click on send। इस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस में भी लिंक दे सकते हैं। अब 9 AM पे ये जो थर्ड बी के स्टूडेंट्स होंगे वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे और जो हमारे 6D के स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो उनको लिंक मिला हुआ है कैलेंडर में या फिर उनके पोस्ट टैब में इंग्लिश चैनल में, वो इस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपकी मल्टीपल क्लासेस भी एक मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ओके मैम, डज दैट आंसर्स योर क्वेश्चन? Ma'am, I have one Yes, query ma'am. here. Yes, please. Like at the top आपने mention किया था 6D, क्या हम Right. वहीं पे ही 6th क्लास mention कर सकते हैं, 6A B C D? मैम वो तो सिर्फ हमारी क्लास का नाम, मतलब मीटिंग का नाम था। कैलेंडर में जब हम गए, न्यू मीटिंग पे गए, तो अगर हम यहाँ पर कोई भी नाम देंगे उसका हमारी क्लास से कोई लिंक नहीं है। ये तो बस स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए है कि हाँ ये नाम है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है कि किन स्टूडेंट्स को मिलेगी। वो आप ऐड चैनल में करते हैं कि किन स्टूडेंट्स के पास जाएगा। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने क्लास 5 लिखा है यहाँ पर और मैं क्लास 6 भी कर लूँ या क्लास 3 भी कर लूँ तो ये लिंक क्लास 5 में नहीं जाएगा। जो क्लास में यहाँ पे चूज करूंगी, थर्ड ए का मान लीजिए मैंने साइंस चूज किया, तो अब ये जो लिंक होगा वो थर्ड ए में जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिखें उससे कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ मीटिंग का नाम है जी। तो यहीं पे हम मल्टीपल कर सकते हैं? नहीं मैम, यहाँ पर सिर्फ एक ही चैनल आप एक बार में कर सकते हैं। मे भी अब ऑप्शन दिया हो, एक्चुअली इसका एक यूजर वॉइस होता है। टीम्स का यूजर वॉइस का मतलब है कि जो टीचर्स को लगता है कि ऑप्शन होना चाहिए वो हम यूजर वॉइस में रेज करते हैं। तो ये ऑप्शन रेज किया हुआ था। लेट मी चेक इफ आई कैन ऐड मल्टीपल क्लासेस बिकॉज राइट नाउ इट इज गिविंग मी द ऑप्शन, सो लेट मी चेक। नो,
इवन आई कैन नॉट डू दैट ऑप्शन राइट नाउ। आप यहाँ पर जैसे मैंने थर्ड बी सिलेक्ट किया तो वो थर्ड ए डिलीट हो गया यहाँ से। तो अभी एक बार में आप एक ही चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप मीटिंग का लिंक कॉपी करके और क्लासेस में पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि मल्टीपल क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। आपको लगता है कि आपने डेली इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, दैट एवरी डे यू वांट टू टेक द मर्ज क्लासेस, फिर आप टीम ही उनकी इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स को ऐड कर दें, 6A के भी और 6B के भी। बट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि आपको उनकी अलग अलग क्लासेस लेनी होंगी तो, क्योंकि आप फ्यूचर में जाके टीम को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए दैट इज आई गेस अ मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन कि आपको जिस दिन मर्ज करना है उस दिन लिंक दे दीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि अब मैंने ये क्लास आपकी जो एक मिनट, हम दोबारा से उस पर जाते हैं जो हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। अब ये मीटिंग हमने सीरीज में ऑर्गेनाइज की थी, 21 से लेके 5 तक हमारी ये जो इंग्लिश की क्लास थी हमने ऑर्गेनाइज की थी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मैनुअली बार बार लिंक पोस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ ये सारी क्लासेस में, जिस क्लास में मैंने थर्ड बी में आई गेस पोस्ट किया था, तो मैं चाहती हूँ कि इन सारी क्लासेस में थर्ड बी के बच्चे आए, तो व्हाट यू कैन गाइड योर स्टूडेंट्स इज, हम थर्ड बी में गए, सपोज कीजिए थर्ड बी में शायद किया था जी। तो इस मैसेज को आपके स्टूडेंट सेव कर सकते हैं, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके सेव दिस मैसेज करेंगे तो ये मैसेज उनका सेव हो जाएगा। और फिर ये सर्कुलर आइकन से आप अगर सेव्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सारे सेव मैसेज आ जाएंगे। तो आप उस मैसेज पे डायरेक्टली जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और वो मैसेज आपका हमेशा सेव में रहेगा, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो टीचर को बार बार लिंक सेंड करने की जरूरत नहीं है, ये आपने एक बार कर दिया और इसमें डेट की जगह आपने लिख दिया 21 to 5 सितंबर, मंडेज वेडनेसडे फ्राइडे, दैट्स इट। आपने एक बार मैसेज भेज दिया, वही मैसेज आपके स्टूडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं यूज करना, आपको डेली बेसिस पे उनको सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, is this thing clear how you can create the meetings, how you can send post the link? अब आपके स्टूडेंट्स को आपने बता दिया कि डेली आपकी 9 AM to 10 AM, 9 AM to मे बी 1 PM आपकी क्लासेस होंगी, तो आपके स्टूडेंट्स इन मीटिंग लिंक्स को चेक कर सकते हैं टीम्स में आके कि उनको कोई नया लिंक मिला है या नहीं। और बेसिकली उनकी हैबिट बन जाएगी धीरे धीरे कि डेली उनको दिन में 2 बार 3 बार अपना टीम्स पोर्टल खोल के चेक करना है। स्टार्टिंग में आप उनको जिस भी तरीके से नोटिफिकेशन देते हैं, मे बी व्हाट्सएप के थ्रू, स्टार्टिंग में आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपने टीम्स पे लॉग इन करिए और अपने लिंक्स चेक कीजिए, बट विद टाइम दे विल गेट यूज टू इट और उन्हें किसी भी एक्सटर्नल ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया, दैट वाज द लास्ट स्टेप। बट अभी हम मीटिंग में हैं, राइट नाउ वी आर इनटू अ मीटिंग, दैट सेम काइंड ऑफ अ मीटिंग यू विल टेक फॉर योर स्टूडेंट्स। सो अब मीटिंग में के दौरान आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेरी स्क्रीन अभी भी आपको विजिबल है? अच्छा, पहले मुझे आप लोग ये बात बताइए कि आपको किस तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको ये जो ऑप्शंस हैं ये यहीं पर दिख रहे हैं अपनी अपनी स्क्रीन में, या फिर इस सेंट्रल एरिया में दिख रहे हैं? अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ, अब मुझे बताइए कि ये जो म्यूट का ऑप्शन है, अगर आपको लैपटॉप पे है, नॉट ऑन द फोन, आई एम आस्किंग फॉर द पर्सन्स हु आर यूजिंग अ लैपटॉप राइट नाउ, सो ये ऑप्शंस आपको टॉप पे दिख रहे हैं या सेंटर में दिख रहे हैं स्क्रीन के? मैम टॉप पर दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। टॉप पे दिख रहे हैं, ओके ग्रेट। सो इसका मतलब है कि आप लोगों को अपडेट मिल गया है। इट वाज अ रीसेंट अपडेट जिसमें हम ये लार्ज गैलरी व्यू देख सकते हैं। उसमें आपके पास यहाँ पर टॉप पे आते हैं ऑप्शन, पहले यहाँ पर बॉटम पे आया करते थे। सो अगर आपके पास अभी ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इट्स गुड। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, राइट नाउ यू कैन कंसीडर योरसेल्फ एज द स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो जो राइट्स हैं, आप ये अज्यूम कर सकते हैं आपके स्टूडेंट्स के पास वो ऑप्शंस होंगे जब वो मीटिंग में होंगे। तो अगर आप अब ट्राई करें किसी और को म्यूट करना, यू कैन नॉट डू दैट। अगर आप ट्राई करें किसी और पार्टिसिपेंट को रिमूव करना, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो आपके स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होंगी, दे विल नॉट बी एबल टू डू। बट आप जो ऑप्शंस मैं अब आपको दिखाऊंगी वो ऑप्शंस आप लोगों के पास होंगे ड्यूरिंग द क्लास, so you all will be able to judge that what kind of facilities, what kind of permissions you will have. Here we have this leave button. Okay, you can just click here. You have two options, either leave or end meeting. लीव का मतलब है सिर्फ आप मीटिंग छोड़ के जाना चाहते हैं। एंड मीटिंग का बटन आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आप ऑर्गेनाइजर होते हैं। अगर आप ही ने मीटिंग क्रिएट की है तभी आप उस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। एंड का मतलब है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक साथ एंड हो जाएगी। तो जब हमारा ये सेशन अभी एंड होगा, आई विल क्लिक दिस एंड मीटिंग बटन और आप ऑटोमेटिकली उस मीटिंग से बाहर हो जाएंगे। आप चाहे खुद लीव करें ना करें, बट टीचर कैन फोर्स यू टू लीव द मीटिंग, राइट?
अगर मैं ऑर्गेनाइजर हूँ तो आई विल हैव दिस एंड मीटिंग बटन. Then the next option is this sharing option. So by clicking on this option, you can share your screen. अब इस option पे click करके आपको कुछ options मिलते हैं जिसमें कि दो important option है, desktop sharing या फिर Windows sharing. Desktop sharing का मतलब है complete entire screen share कर रहे हैं आप. तो अगर आप कुछ विंडो मिनिमाइज करके कुछ और ओपन करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, कोई पीडीएफ ओपन करते हैं, कोई वीडियो फाइल प्ले करते हैं, तो वो सब चीजें आपके स्टूडेंट्स को विजिबल होंगी. विंडो शेयरिंग का मतलब है आप कोई एक पर्टिकुलर विंडो शेयर कर रहे हैं. तो अब जैसे मैंने डेस्कटॉप शेयरिंग की हुई है, तो अगर मैं कुछ भी मिनिमाइज कर रही हूँ आपको सेकंड स्क्रीन दिख रही है. अगर मैं ये वर्ड फाइल ओपन कर रही हूँ तो ये वर्ड फाइल आपको विजिबल है. बट अगर आप विंडो शेयर करते हैं और टीम्स विंडो शेयर कर रहे हैं या कोई एक ब्राउजर शेयर कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ वही पार्ट ही विजिबल होगा. अगर आप उसको मिनिमाइज कर लेंगे तो कोई और एरिया आपके पार्टिसिपेंट्स को विजिबल नहीं होगा. राइट. अब यहाँ पे अगर आप लैपटॉप पे यूज करते हैं, आपको एडिशनल ऑप्शन मिलता है अपनी ऑडियो को शेयर करने का. राइट. अब मैं एक दोबारा से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन, बट अब मेरे पास इंक्लूड कंप्यूटर साउंड का ऑप्शन होता है, उस पर चेक किया है मैंने और फिर डेस्कटॉप शेयर किया है आप लोगों के साथ. तो इफ नाउ आई प्ले समथिंग, लेट्स कम टू एनी वीडियो. So I also create video and designing for the schools. So let me show you any video. Let's say take this Janmashtami video which I have created for one school. So I guess the audio was also available to you. The audio was audible. Yeah, right. Yes, So in this Yes, manner, yes. yeah. So in this manner, if you are using a laptop, you get one additional option to share the computer sound also. So you can tick that option, and if you want to show any YouTube video or maybe any recorded video to your participants, so you can also do that thing. Fine. Then the next option we have here is the mute option, which you all are aware of. You can mute or unmute yourself. Then the video option that you all are aware of, to turn off or turn on your camera. Here we get this 3-dot option. It is a you can say much more important than all these options because it is having multiple options. इसमें बहुत सारे options हैं. डिवाइस सेटिंग्स में आप अपना माइक्रोफोन, कैमरा, अगर आपके पास ड्यूल कैमरा है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर सिलेक्ट कर सकते हैं. मीटिंग डिटेल्स में आप मीटिंग के डिटेल देख सकते हैं. ठीक है. अब इसमें मैंने जो नाम रखा है मीटिंग का, दैट इज सेशन 1 क्रेसेंट पब्लिक स्कूल 6 to 7 1 आवर की मीटिंग थी ये. सैटरडे सितंबर 19 6 PM. ज्वाइन इन्फो यहाँ से कॉपी करके भी किसी को भेज सकती हूँ मैं, बट ये सारी डिटेल्स आपके पास नहीं आएंगी. ठीक है. अभी मैं एज अ ऑर्गेनाइजर ये चीज़ें देख रही हूँ, तो जब आप टीचर की तरह लॉग इन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखेंगे. देन आई हैव दिस गैलरी व्यू. गैलरी व्यू में हमारे वही 9 वाला व्यू दिखता है जिसमें हम 9 पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं. लार्ज गैलरी व्यू अभी फीचर आया है. एटलीस्ट 10 पार्टिसिपेंट्स की जनरली रिकमेंड किया जाता है कि वीडियो ऑन हो तो आप बेटर तरीके से लार्ज गैलरी व्यू देख सकते हैं. टुगेदर मोड भी प्रीव्यू में है. टुगेदर मोड में आपके पास एक वर्चुअल क्लासरूम बन जाता है और इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग सीट्स पे बैठा हुआ देखते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं. टुगेदर मोड भी यूज़ किया जा सकता है. Then we have, but I like this large gallery view much more than together mode. Then we have background effect. So as you can see, I'm having this background in which I'm having my company's name, my image, okay, the Microsoft logo, all the things here. So that you can apply. अभी आप लोग अपना ओरिजिनल बैकग्राउंड कर रहे हैं, बट यहाँ पे अप्लाई बैकग्राउंड इफेक्ट्स पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ वर्चुअल बैकग्राउंड्स मिलते हैं. अपने आप को ब्लर भी कर सकते हैं आप. ब्लर पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा. आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड इस टाइम ब्लर हो गया है. या फिर आपको बहुत सारे इसमें वर्चुअल बैकग्राउंड्स मिलते हैं तो उनको भी अप्लाई करके आप अपने ओरिजिनल बैकग्राउंड की जगह कोई भी वर्चुअल बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि इसमें आपके पास क्लासरूम का बटन है, क्लासरूम का बैकग्राउंड है, तो अगर क्लासरूम पे के फीचर पे क्लिक करके मैं अप्लाई करूँगी सो मैं ऐसा लगेगा दैट आई एम इनटू अ काइंड ऑफ अ क्लासरूम. और बट आई लाइक द मोस्ट, बीइंग अ डिज़ाइनर आई लाइक दिस ऑप्शन कि हम ऐड न्यू कर सकते हैं और अपनी खुद की इमेज यहाँ पर कोई भी बैनर आपने जिसमें आपके स्कूल का लोगो है या कुछ भी ऐसा है
वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी कुछ चीज़ें यहाँ पर अपलोड की हुई हैं, तो अगर मैं और कोई इमेज लेना चाहती हूँ तो आई सिंपली ब्राउज दैट इमेज। सपोज कीजिए मुझे ये इमेज चाहिए, तो आई फाइंड ऑल द थिंग्स विच आई एम एडिंग हेयर एट द बॉटम। अब ये वाली इमेज को क्लिक करके अप्लाई कर रही हूँ मैं। नाउ यू कैन सी दैट माई नेम इज़ देयर, माई कंपनीज नेम इज़ देयर, एवरीथिंग फाइन। सो इन दिस मैनर यू कैन यूज़ द बैकग्राउंड इफेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आपके पास टर्न ऑन लाइव कैप्शन है, बट दिस ओनली वर्क व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल if I'll turn it on, now whatever I'll explain you, it will be visible to you in the form of these captions at the bottom of the screens. So if you are explaining things in English language and you want your students to read whatever you're explaining, you think that it will not be clear to some students, maybe if your speed is very high, if you are in a flow and you want it to be available for your students, then you can turn this feature on and they'll be able to read. So I guess now you are able to read everything from the captions option, right? So if you want to turn off this feature, you can click on turn off option, and again you will have a plain thing where nothing will be visible to the students. But yes, this option will only work when you are explaining things in English language. For example, if I'll turn it on again and now I'll not speak in English, so let's see what happens. Now I will okay, अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं इंग्लिश में आपसे ना ही बात करूं। So आप देख सकते हैं कि कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है randomly because it gives the caption in only English language. So if you are explaining things in mixed language or maybe in Hindi language or maybe in Punjabi, so at that time you should keep it turned off, otherwise आपके students को एक मजाक का topic मिलेगा. If you want to avoid it, then you should not use it. Then we have this recording feature. I have already turned on the recording, so that's why I'm getting the stop recording button now. ठीक है, stop recording पे click करेंगे तो जितना part मैंने record किया है उतना part मेरे पास save हो जाएगा. डायल पैड है, दैट्स नॉट नीडेड. टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो, अभी आप लोगों की वीडियो जितनों ने कैमरा ऑन कर रखा है उनकी वीडियो मुझे विजिबल है. इफ आई क्लिक टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो, ओके, ये मे बी अभी टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो फीचर जो है वो सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग के लिए है. पहले क्या होता था, अगर मैं टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो करूं तो आप लोगों की वीडियो भी विजिबल होना बंद हो जाए. बट राइट नाउ आई कैन सी यू ऑल, सो मे बी दे हैव गिवन द अपडेट इन इट. अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और टर्न ऑफ कर देंगे तो शायद स्क्रीन शेयरिंग आपको विजिबल नहीं होगी, राइट? बाय डिफॉल्ट यू शुड कीप इट ऑन, टर्न ऑन. द नेक्स्ट थिंग इज okay, the next thing is raise hand. So maybe you are having the same feature in the Zoom, so you are aware of this thing. You can guide your students to use this button. If somebody will click this, the virtual hand will be raised in front of the name of the participant. So in this way you'll be able to know that this particular students want to speak something, want to answer to your question or maybe ask a question. So in this manner you can use this raise hand feature, and if the student will click it again, the hand will automatically get lowered. Then we have this meeting chat in which anybody can write a message and everybody will be able to see it, reply to it. We have this participant list in which we can see the names of the participant. Fine. Okay, one more thing, one important thing, that being the organizer of the meeting, if you are taking the meeting on a laptop, तो लैपटॉप में आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है. ये इस 3 डॉट बटन पे आप क्लिक करके यहाँ मैनेज परमिशंस लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको डाउनलोड अटेंडेंस का ऑप्शन मिल जाता है. अगर आप ऑर्गेनाइजर हैं और अगर आप लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं, नॉट ऑन फोन, लैपटॉप के थ्रू क्लास ले रहे हैं, आपको यहाँ पे डाउनलोड अटेंडेंस का ऑप्शन मिल जाता है. डाउनलोड अटेंडेंस पे क्लिक कीजिए, एक्सेल में आपकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस डाउनलोड हो जाती है. अदरवाइज आप स्नैपशॉट्स की फॉर्म में जनरली करते होंगे, बट यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर मिलता है, लेकिन अभी ये सिर्फ लैपटॉप में वर्क करता है. तो आप डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल शीट और वो एक कंप्लीट डिटेल्स के साथ एक्सेल आती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे, उसमें एक्सेल शीट में आपको कंप्लीट डिटेल होगी कि जैसे कि आपकी मीटिंग थी 10 AM to 11 AM, तो इस स्टूडेंट ने 10:10 पे ज्वाइन किया, 10:20 पे लीव कर दिया, इस स्टूडेंट ने 10 o'clock ज्वाइन किया, 10:40 पे लीव किया. सो इट विल शो यू, या दोबारा से 10:50 पे रीज्वाइन किया, इट विल शो यू कंप्लीट डिटेल्स विच विल मेक योर वर्क वेरी इजी, आई गेस. Fine. So now I have explained, I guess, all the features in this. Excuse me. Yes, please. Can you please show that Excel sheet? अगर डाउनलोड करके शो कर सकते हैं तो. Ma'am, actually, I'm using the enterprise version, so I don't get. I am the organizer of this meeting, but still I don't get that option. It is only available in the education version. So जो ये मीटिंग मैंने क्रिएट की है, ये हमारे जो कंपनी का अकाउंट है उसके थ्रू क्रिएट की है. So that's why I'm not having that option. But let me check, maybe अगर
डाउनलोड फोल्डर में अगर किसी और अकाउंट से मेरे वो शायद ये है मेरे पास एक लिस्ट. Yes, you can see this list. ओके अब और ज़्यादा रिफाइंड तरीके से आती है, जैसे कि अर्यांश चौधरी आप देख सकते हैं, ज्वाइन बिफोर कि पहले भी ज्वाइन किया है इसने, और ये डेट है 11:32 30 AM पे ज्वाइन किया, फिर लेफ्ट कर दिया कितने बजे 32 पे ज्वाइन करके 11:35 पे लीव कर दिया, और फिर दोबारा से ज्वाइन किया 11:36 पे. तो इस तरीके से कंप्लीट डिटेल है. फिर भारत गहलोत के बारे में भी आप देख सकते हैं, 11:32 पे ज्वाइन किया और मे बी किसी भी रीज़न की वजह से उसी टाइम लीव किया, और लेकिन फिर उसी टाइम दोबारा से ज्वाइन भी कर लिया. तो इस तरीके से आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ पर. Please explain this option again from where we will get, because this is the present major query, क्योंकि हम Okay. सबको अटेंडेंस में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जी तो जी वो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इजी हो Okay. जाएगा. ओके मैम, इसके लिए दोबारा से मैं बता देती हूँ कि ये ऑप्शन अभी सिर्फ लैपटॉप पे अवेलेबल है. तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो टीचर ऑर्गेनाइज कर रही है मीटिंग वो लैपटॉप पे ऑर्गेनाइज करे. ठीक है, हो सकता है कि इंग्लिश की टीचर ने क्लास लेनी है बट इंग्लिश की टीचर के पास लैपटॉप एक्सेसिबल नहीं है, तो इंग्लिश की टीचर उसमें प्रेजेंटर बन जाए और कोई और पर्सन उनके लिए क्लास ऑर्गेनाइज कर दे, ताकि जिसके पास लैपटॉप है वो यहाँ से डाउनलोड कर सके. ठीक है, 3 डॉट ऑप्शन On पे जाएंगे. desktop, जी जी मैम, desktop पे भी हो जाएगा. हाँ हाँ जी जी जी, डेस्कटॉप पे भी हो जाएगा, लैपटॉप डेस्कटॉप पे हो जाएगा. इट्स ओनली द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो एंड्रॉयड पे या विंडोज पे, वो सॉरी एंड्रॉयड पे या आपके iOS पे अभी अवेलेबल नहीं है, बट इट इज अवेलेबल ऑन द विंडोज 10. सो दैट्स व्हाई यू विल गेट इट ऑन डेस्कटॉप एज वेल एज ऑन लैपटॉप. ओके आप पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाएंगे यहाँ पर मीटिंग के दौरान. ये आप ये ध्यान रखिएगा कि अटेंडेंस आप ड्यूरिंग द मीटिंग ही डाउनलोड कर सकते हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद नहीं डाउनलोड कर सकते. तो ड्यूरिंग द मीटिंग आप पार्टिसिपेंट लिस्ट पे जाएंगे, 3 डॉट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ मैनेज परमिशंस लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड अटेंडेंस. आपको बस उस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी. ठीक है. So because I have received the feedback from so many schools, because this feature was not available in Teams earlier, and this has made the life of the teachers very easy. So this is you can say a very important feature which will be useful for you all. Okay, now from my side I have explained all the features which I used to explain in the basic session. If you have any kind of doubts you can ask me. आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Yes teachers, any question, any query? अब आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने पोर्टल में लॉगिन करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप जैसे सपोज कीजिए आए यहाँ पर, आप अपने पोर्टल में लॉगिन करेंगे, ज्वाइन और क्रिएट टीम पे जाएंगे, क्रिएट टीम पे जाएंगे, क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास का नाम देंगे. ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स को अभी ऐड मत कीजिए. ठीक है, स्टूडेंट्स को ऐड मत कीजिए, अभी टीचर्स को ही ऐड कर दीजिए. स्टूडेंट्स वाले रीजन में टीचर्स की आईडीज बन गई हैं, अभी टीचर्स को ही ऐड कर दीजिए. तो जो पर्सन क्रिएट कर रहा है वो ओनर रहेगा, वो टीचर की तरह बिहेव करेगा, और जिन 3-4 टीचर्स को आप ऐड करेंगे उनके पास स्टूडेंट्स वाले राइट होंगे. फिर आपकी ये टीम क्रिएट हो जाएगी, उसमें अलग अलग चैनल्स क्रिएट करके देख लीजिए. ठीक है, फिर कैलेंडर पे आइए, न्यू मीटिंग पे जाइए, उस चैनल में अपना नोटिफिकेशन, उस चैनल को सिलेक्ट करके अपनी मीटिंग क्रिएट कीजिए. ठीक है, उसको सेंड कर दीजिए, उस चैनल्स में टीचर्स को वो लिंक मिल जाएगा, उनके कैलेंडर में भी मिल जाएगा, और फिर वो उस पर क्लिक करके मीटिंग अटेंड कर पाएंगे. ठीक है, तो ये प्रोसीजर अभी आप एज अ डमी क्लासरूम्स क्रिएट कर सकते हैं, डमी मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, और अपने जब आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप उसको फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं चीज़ें. I'm also having one YouTube channel. I'm not having many videos on it, but few basic videos I have uploaded there. I will give the links to Neha ma'am, or the channel name is EduSentials. So you can directly go to that channel, or I'll give you the links. वहाँ पर basic videos हैं जहाँ आपको class team कैसे create करनी है, classes कैसे create करनी है, meetings कैसे schedule करनी है, वो चीज़ें बताई हुई हैं. Waiting area कैसे enable करना है students के लिए, वो बताया हुआ है. तो अगर किसी भी टीचर को लगता है कि 5-6 मिनट का रिकैप चाहिए उनको इस किसी भी टॉपिक पे, तो वो उस चैनल पे जा सकते हैं. ओके, सो नेहा मैम, व्हाट डू यू से? हाउ वाज द सेशन?
I think we must ask from the teachers one by one. Yeah, teachers, Yeah, you can I also think tell one teachers are raising because their hand. teachers are the end users. So you can let me know. Exactly. I Yes. want we are having one IT member here, Dinesh sir, and two computer teachers are with us, Renu Okay. ma'am and Swinky ma'am. And Okay. I think Renu we ma'am should and ask them Renu ma'am first. and uh, Renu ma'am, Swinky ma'am, and Dinesh Pinky sir. ma'am. Okay. Because So all ultimately three they of are the you, one. right, who'll be Yeah, helping the teachers later on. Yes, Renu ma'am, yeah. I guess you are happy with the features in this. You have a Yes, smiling ma'am. It was. face, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was great, ma'am. Okay, great. Dinesh sir, what do you think? Dinesh sir, are you there? Maybe he's not there, or maybe he's having some kind of a issue. Uh, ex, excuse me, ma'am. Are Yes you sir, yes listening? sir. Yeah, yeah, you are audible. मैम फीचर्स बहुत बेस्ट है Okay, great, और thanks. अगर ये So फीचर्स स्टूडेंट्स फॉलो करें टीचर्स फॉलो करें बहुत बेस्ट है जी 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 तो सर हमारी पूरी सपोर्ट मिलेगी आपको प्लस आप होंगे स्कूल में आपको अपने कंप्यूटर टीचर्स का भी सपोर्ट है सो आई गेस आप भी अगर टीचर्स को हेल्प करेंगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर टीचर्स ऑल्सो यस मैम जी जी ओके एंड स्विंकी मैम आर यू देयर Yes, ma'am. so did you find the features useful Yes, ma'am. Features are good, was very useful features. great 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 so do you think that your teachers will be able to use it and you'll be able to help your teachers in using Maybe these features it will take time to understand these Of features. course, you're right. It will take some times because you can say it is a very, it is a large program. It is a, you can say very huge software which is having so many functions. अभी तो हमने Yes. इसको आधा समझा है. अभी आधी चीजें इसमें और हैं जो आप समझेंगे. तो of Yes. course आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे comfortable होने में. But once you will sit on it, once you will try using it, at that time definitely you will find it much useful for you and your students. Yes, ma'am. Yes. So any other teacher who wants to say something or maybe who wants to give the feedback? Ma'am, we'll be disturbing you Yeah, sure, a sure. number of Anytime. times Anytime. because these features are very advanced one. और Right, right, इतने right. जल्दी हम इस पे कंफर्टेबल नहीं होंगे बिकॉज एक माइंडसेट भी है ह्यूमन बीइंग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जी, जी, जी. बिकॉज Yes. वंस व्हेन वी हैव स्टार्टेड जूम तब भी हमारे फेसेस जैसे थे कि हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे बट विद Right, इन अ right. वीक वी पीपल बिकेम लाइक इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस Right, नाउ वील right. बी कंपेयरिंग जूम एंड टीम्स टुगेदर फिर हम कहेंगे कि हमें जूम ज्यादा बेटर लग रहा था जी, जी, but जी. I know definitely this is a very advanced and a very pretty cool option. So Yes, yes, yes. soon Because we'll on be Zoom, able to you can manage say it. Zoom is just a video conferencing app. Zoom is not a complete solution because in Teams you have everything under one roof, under one umbrella, all the things, the assignment, the notebooks, checking everything. So obviously you will find it much better than using Zoom, but you have to practice on it and slowly you will become comfortable. Two things, ma'am, we found like very helpful. One is the attendance option because Yes, every day right, we are facing this problem. right. Another one is the timetable option also Okay, right. because once we Yes. have Schedule, finalized the yes. timetable like schedule and student as well as teachers, it will be helpful Right, for them like to check with their classes and with their days and with their right, timings also. right, right, right. And So, let us start by tomorrow or by Monday practically. I'll be in mhm, touch with the teachers mhm. and soon we'll get back to you with the number of concerns Sure. if we'll face. Sure, sure, sure. Anytime. Also, you are having the number of Shilpa, so you can also call in case I'm having any kind of a training session. So maybe I'll not be able to pick that call at that time. So in that case, you can call Shilpa. She'll be able to help you out. And otherwise, also, of course, I'll give you a call back. Right? Sure, ma'am. So can we end the session? Can we wind the session right now? Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you all. Welcome, everyone.
So good luck. you so Good luck much, in ma'am. using Teams. Okay. And the second session we'll be learning many more things. So be prepared for it. Come with lot of queries. I'll be ready to solve your queries at that time. Okay then. So Thank bye you, ma'am. bye. Okay, ma'am. Okay. Bye bye Okay, everyone. bye. Take care.